So hello everyone, today we are going to discuss current questions of 11th October. So let's start directly from the questions, and at the end we will actively go over the question which we will going to discuss right now. Consider the following statement regarding Telemanas. Telemanas is a mental health helpline in India. Tele basically distance का मतलब होता है and manas I don't know. It was initiated by the Niti Aayog. I'm not aware of it. So let's move to the next question. If you know the answer, please keep the answer in the comment box. Number two, consider the following statements about particularly vulnerable tribal groups in India. Number eight, particular, particularly vulnerable tribal groups reside in 18 states and one union territory. Number two, a statement or a statement or declining population is one of the criteria for determining particular vulnerable tribal group status. There are 95 particular vulnerable tribal groups officially notified in the country so far. Irregular and Konda Reddy tribes are included in the list of particular vulnerable tribal groups. So, how many of the above statements are correct? कि 18 स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में हो सकते हैं? दिल्ली में नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, इसके अलावा जो है वहाँ भी नहीं है, कहाँ है? और I'm not aware of it, so I would not give the answer. Disguised unemployment, okay, generally means large number of people remain unemployed, alternative employment is not available, marginal productivity of labor is zero, productivity of worker is low. Disguised unemployment. Generally means mm, okay. जब फोन स्टेटमेंट अबाउट क्या है Batrachia is that true? तो ये क्या है Nacti Batrachia is a family of frogs that are endemic to Western Ghat of India. Number one. Nacti Batrachia frogs are known for their direct development, meaning that they do not have a larva stage. Number three, Nactibacteria frogs are mostly nocturnal and insectivorous, right? तो इसमें बेसिकली हाँ ये तो है कि जो नाइक्टिबैक्टर है वो वो है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका से है तो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया श्रीलंका में पाई जाती है सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है नाइक्टिव बैक्टीरिया फ्रॉग्स आर नोन फॉर देयर ये मुझे पता नहीं है और ये भी मुझे पता नहीं है वो नॉक्टर्नल होते हैं या नहीं होते इंसेक्टिवोरस होते हैं या नहीं होते What is the first statement? Kenya, Uganda, Namibia और सोमालिया How many of the above nations share a border with Tanzania? देखो हमने वैसे तंजानिया के बारे में काफी बात की है तंजानिया के साथ इंडिया ने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया था ओके तो हम ये इसी ना लोकेशन की बात कर रहे हैं इससे पहले हम जब हर किसी की अफ्रीका की लोकेशन देखते थे उसमें सोमालिया इथोपिया एरिट्रिया ये साइड देखते थे तो हम लेट्स थ्रो हियर अगेन द मैप ऑफ द
Africa. Okay, let's see. ये है इजिप्ट। इजिप्ट के आगे जैसे ये मान लो ये है इजिप्ट, ऐसे जाना है ये। इजिप्ट के आगे है सूडान। सूडान के यहाँ पे एरिट्रिया। इधर ओके जिबूती। इधर इथोपिया। ये सोमालिया। ये इथोपिया हो गया। इधर साउथ सूडान हो गया। इधर केन्या हो गया। इधर उगांडा हो गया। उगांडा के जस्ट नीचे कौन सा देश है? तंजानिया हो गया। इधर कौन सा देश था तंजानिया के? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऊपर उगांडा, इधर केन्या, इधर क्या था? तंजानिया था। इधर जैसे बरूंडी एंड रवांडा। यहाँ पे रवांडा था, यहाँ उगांडा था। तो एंड द डाउन साइड ऑफ इट इज मोजाम्बिक। ये इज मोजाम्बिक। और इसके मोजाम्बिक के जिस आगे साउथ अफ्रीका। मोजाम्बिक के साइड में जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को नीचे जामीबिया, उसके नीचे जिम्बाब्वे। ये मोजाम्बिक है। यहाँ इधर बोत्सवाना है साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर। इधर नामीबिया है। So if we look at it a little more closely, so here is the Horn of Africa, here the Djibouti, here Eritrea, इधर सोमालिया, इधर एथोपिया, इधर केन्या, इधर केन्या हो गया। इधर सूडान, इधर इजिप्ट, इधर साउथ सूडान, केन्या के जस्ट आगे तंजानिया। ओके, इसके जस्ट दोनों के बीच में कौन सा था? उगांडा। साउथ सूडान और तंजानिया के बीच में उगांडा। इधर बरूंडी, उसके जस्ट ऊपर रवांडा। इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इधर मोजाम्बिक। इधर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के यहाँ पे नामीबिया और यहाँ पे बोत्सवाना। इधर जिम्बाब्वे और नामीबिया। इसके अलावा देर इज जस्ट ये मालवी भी है। इधर जस्ट यहाँ पे जाने के मोजाम्बिक के साइड में कहाँ बनाया था? मोजाम्बिक दिख भी रहा है अच्छे से। यहाँ पे मालवी भी है। तो सपोज करते हैं कि इन द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द अबव नेशन हैव शेयर बॉर्डर विद तंजानिया। एक है जामीबिया, सोमालिया, उगांडा और अगर यहाँ पे बात करें ये है सोमालिया की। इधर केन्या है, इधर तंजानिया है। तंजानिया के ऊपर है उगांडा, उसके ऊपर है साउथ सूडान, तो साउथ सूडान के जस्ट ऊपर है सूडान। ये हो गया। इधर है मोजाम्बिक, मालवी। इधर जैसे साइड में रवांडा, बरूंडी, तो ये उगांडा, रवांडा, बरूंडी, तंजानिया, मोजाम्बिक। इधर केन्या, तो केन्या हो गया, उगांडा हो गया, जामीबिया। जिम्बाब्वे नहीं है। नहीं नहीं, जामीबिया तो है, जिम्बाब्वे नहीं है। इधर जामीबिया है, इसके जस्ट नीचे जिम्बाब्वे है। इधर मोजाम्बिक था, इधर साउथ अफ्रीका था, इधर बोत्सवाना था, इधर जस्ट नामीबिया था। तो जामीबिया, जाम, नामीबिया, उगांडा और केन्या। नो सोमालिया आई थिंक। या तो
23. Right to privacy is protected under the which article of the Constitution? Article 15, Article 19, Article 21 or 29. Right to equality, right to freedom. I mean equality the 14 in the Article 15 मुझे याद नहीं आ रही है भूल गई how is that possible even protection ये शायद untouchability से रिलेटेड था और ये right to freedom of assembly expression इस सबसे Article 21 आंसर है ये This represents the water on the planet Earth. Consider the following statement. तो basically ना ये काफी important question है काफी बार पूछा जाता है. The amount of water in the river lake is more than the amount of groundwater. No, actually no. Of course, the amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater. So that is correct. I think only one statement is correct from my side. Black cotton soil of India has been formed due to weathering of brown forest soil, fissile volcanic rock, granite and schist, shale and limestone. Sir, ब्लैक सोल किस वजह से बनी है? जहाँ तक मुझे लगता है ये वॉल्केनिक रॉक से बनी होगी, है ना? तो Volgard 1 and Volgard 2 technology are mentioned in the context of corn propagation of crop plants, the developing genetically modified crop plants, production of plant growth substance, production of biofertilizer. I am not sure. Consider the following: bacteria, fungi, and virus. Which of the above can be cultured in artificial synthetic medium? आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक मीडियम में किसको कल्चर किया सकता है? I'm not sure actually. Tele जो मनास है is a mental health helpline in India. It was initiated by Niti Aayog. How many of the statements are correct? सबसे पहले टेली मनास is a mental health helpline, ठीक है? ये हमें याद रखना है कि ये करंट अफेयर पे भी है और इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेन्युइनली काफी बार आए हुए हैं. टेली मनास क्या है? एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है. इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022 बाय मिनिस्ट्री भी याद रखनी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जो है ये कहा गया था इसको लॉन्च किया था. इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अनेबल पीपल टू सीक सपोर्ट विद मेंटल हेल्थ इशू व्हाइल मेंटेनिंग एनोनिमिटी कि भाई आप एनोनिमिटी भी मेंटेन कर सके और इस मेंटल हेल्थ भी सीख कर सके to facilitate timely referral to for specialist care and follow-up to enhance mental health care capacity and network. हम क्या रखेंगे कि जो टेलीमेनास है वो क्या है? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोग्राम है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली में इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर 2022 में. किसके लिए? ताकि लोग मेंटल हेल्थ सीख कर सके उनको वो भी एनोनिमिटी के साथ कि आपको ये ना बताना पड़े कि हु यू आर स्टिल यू कैन सीक द मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को भी रेफर किया जा सकता. तो बेसिकली लोगों की हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. हमें बेसिकली ये याद रखना है कि ये एक तो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इंडिया है और इसको इंट्रोड्यूस करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है. तो छोटी क्वेश्चन 2 मिनट में पढ़ने पे खत्म हो जाएंगे. और जो ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में पूछा था इन्होंने तो इसमें क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. बेसिकली देखो तो बेसिकली इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या पूछा था कि पर्टिकुलर वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप रिजाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी. तो ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक है कि 18 स्टेट में और अंडमान और निकोबार में रिजाइड करते हैं पर्टिकुलर. और देखो ये स्टेगनेंट डिक्लाइन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ एन
हाँ, ये पर्टिकुलर वल्नरेबल स्टेटस तो जैसे इन्होंने क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, जैसे एग्रीकल्चर पहले से था उस टाइम की। स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, जैसे इन्होंने ये कहा है पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है। टेक्नोलॉजी प्री एग्रीकल्चर लेवल की है, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी है। इसके अलावा तो there are 95 people vulnerable officially notified in the country so far. तो इन्होंने आर्टिकल 75 ट्राइबल ग्रुप हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एज ए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ओके, तो ये हो गया रॉन्ग। Irregular and Konda Reddy's tribes are included in the list of this. सो irregular ये क्या है, तमिलनाडु में जो रेड्डीज है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है, ये तो हमें पता ही है। रेड्डीज का तो सब्सिस्टेंस का मतलब बेसिकली ये था कि गुजारा मात्र, यानी कि आपको कुछ अर्निंग वगैरह नहीं हो रही है, जितना आपको गुजारा चलाने के लिए उतना ही लेवल ऑफ इकोनॉमी है। ओके, इसमें बेसिकली ये याद रखना था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैटेगराइज किया है। 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी है। प्री एग्रीकल्चर लेवल की इकोनॉमी है, स्टेगनेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, लिटरेसी वेरी लो है, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी है। Question number 3. Disguise in unemployment generally means marginal productivity of labor is zero. Disguise basically ये जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें बेसिकली जब लोग बेवजह काम कर रहे होते हैं, पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे होते, उसको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि ना तो उनको उनके अपने हिसाब से वर्क मिला हुआ है, बस काम कर रहे हैं जस्ट फॉर द सक्सेस, जस्ट फॉर द सस्टेनिंग ऑफ द लाइफ। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, मैंने कहा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो, जीरो, उसको क्या बोलेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब ये है कि मान लो सपोज कीजिए वो जो कांस्टेंट करके आप एक इनपुट दे रहे हैं, उसके जो आउटपुट आ रही है तो वो जीरो हो जाए। सपोज करो एक इंडस्ट्री है, उसमें 10 वर्कर काम कर रहे हैं और वो 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर दो थोड़े दिन बाद उसमें 2 वर्कर ऐड कर दिया जाए, तो 2 वर्कर ऐड करने के बाद कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, तभी भी 10 प्रोडक्ट 10 वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो एक इनपुट के बाद आउटपुट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो रही है, क्या हो रही है, ऑफ लेबर इज जीरो, देयर इज नथिंग कमिंग आउट, राइट। तो disguised unemployment is unemployment that does not affect एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट, जैसे जो इकोनॉमिक आउटपुट पे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी जीडीपी इतनी थी तो अगर कुछ लोग अभी उसमें एम्प्लॉयड भी है तो वो इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, एंड दे आर जस्ट डिस्गाइज्ड है, वो उसमें आउटपुट कितनी आ रही है उतनी ही आ रही है। इट ओक्योर व्हेन प्रोडक्टिविटी इज लो एंड टू मैनी वर्कर आर फीलिंग टू फिल जॉब। ओके, प्रोडक्टिविटी वैसे ही बहुत लो हो जाए, इट कैन रेफर टू एनी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज नॉट एम्प्लॉयड एट फुल कैपेसिटी, what we gonna call it, disguise unemployed. Number 4, which of the following, all of above are the true. इसमें क्या बताया है कि जो मिट्टी बैक्टा चिड़िया फ्रॉग हैं, पहले तो बात ये फ्रॉग हैं, दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, वैसे श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड दे आर मोस्टली नॉक्टर्नल इंसेक्टोवायरस, इंसेक्टोवोरस से पहले, और नॉक्टर्नल है, ठीक है। जब इंसेक्ट को खाते पीते, नॉक्टर्नल का मतलब कि रात को जगते हैं सुबह को सोते हैं। देखो, द सेकंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट, एम्फीबियन की असेसमेंट हुई, conducted by over 10,000 experts and analyzing 8,011 species worldwide, has revealed that the elusive dancing frog of the Western Ghats are one of the most threatening amphibian genera. तो फिर कौन से एनिमल्स हैं वो जो पानी में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो एक स्टडी कंडक्ट हुई, इसमें 8,011 स्पीसीज को स्टडी किया गया, एनालाइज किया गया, उसमें बताया गया कि जो एलर्जी डांसिंग फ्रॉग है ना वेस्टर्न घाट का, वो मोस्ट थ्रेटनिंग एम्फीबियन जेनरा है, पहली बात। तो इसके अलावा हमने देखा जो नेक्टिबैक्टेरिया इज अ फैमिली ऑफ फ्रॉग, ठीक है, दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। नेक्टिबैक्टेरिया फ्रॉग आर नोन फॉर देयर डायरेक्ट डेवलपमेंट, मीनिंग दे डू नॉट हैव अ लार्वा स्टेज, यानी कि लार्वा स्टेज नहीं होती, वैसे हमें मुझे आइडिया रहता है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि लार्वा स्टेज होती है नहीं होती। तो ये नेक्टिबैक्टेरिया जो फ्रॉग हैं उनकी लार्वा स्टेज नहीं होती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है, ये याद रखना है। ये फ्रॉग जो है मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं, इंसेक्टो वायरस होते हैं, रात को भी रखते हैं और इंसेक्ट को खाते हैं।
But this, so ये शायद और थ्री था हमारा, सोमालिया वाज नॉट हियर था। ये है तंजानिया, यहाँ पे मैप भी लगाया हुआ है, ठीक है। इधर क्या है ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये उन्होंने चेरी लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे केन्या है, सोमालिया है, उगांडा है, और ये जो है ये रवांडा है, ये बुरुंडी है, ये जामीबिया है, ये मलावी है इधर, ये मोजाम्बिक है, तो मलावी भी टच करता है, जामीबिया भी टच करता है, मोजाम्बिक भी टच करता है। इधर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो था, ये बुरुंडी था, ये रवांडा था, ये उगांडा था, ये केन्या था, ये सोमालिया है। ओके, इधर साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जिसके ऊपर बोत्सवाना है, ये नामीबिया है, ये जिम्बाब्वे है, ये मोजाम्बिक है, ये तो बिल्कुल साथ में ही थे। ये एंगोला है, इसके अलावा ये भी इजी टू रिमेम्बर। तो इतनी जो चीजें हैं ना, इतनी वाली चीजें, ये तो हम इजी से, ये वाला मैप तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये है लिसोथो। लिसोथो से मुझे ये याद आ गया कि वो एक मूवी है संजय दत्त की, और अजय देवगन भी उसमें है, उसमें वो करते रहते हैं लिसोथो लिसोथो, और लिसोथो जाना है, लिसोथो जाना है। ये क्या है, स्वाजीलैंड है, ये आई है यहाँ पे। ओके, ये तो मेडागास्कर ही है, फिर इधर मॉरिशस है, ये यूनियन है, शेचल है, यहाँ पे विक्रम ग्रेवाल सर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में है, विक्रम ग्रेवाल सर टेलीग्राम पे, वो तो ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं सर, सेचल में है फिलहाल सर। जान जी बॉस, यस, ये दोबारा से लिख दिया, जैसे अब दोबारा देख लेते हैं, कहाँ गया पेन। ओके, केन्या, तंजानिया, रवांडा, बरूंडी, उगांडा, एंड एंजोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, लुसोतो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जामीबिया, मोजाम्बिक, मलावी, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेचल। राइट टू प्राइवेसी, ये तो देखो, ये तो है, इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to a procedure established by the law. This has been intercepted by the Supreme Court of India to include the right of privacy as an intrinsic of the right of life and personal liberty. तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट लॉ के प्रोसीजर के। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें से कुछ बताया भी सिर्फ आर्टिकल 21 के बारे में बताया कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट किस में आता है। देखो, आर्टिकल 21 है राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड इसी में आता है राइट टू प्राइवेसी। नंबर 7 विद रेफरेंस टू द, ओके, ओनली टू, ये तो हमने देखा है, तो ये तो करेक्ट है ही। सबसे ज्यादा जो वाटर शेयर है वो किसके पास है, ओशियन वाटर सबसे ज्यादा है 97.2%। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वाटर शेयर है वो किसके पास है, ग्लेशियर्स के पास है, आइस कैप के पास है, 2% का शेयर इनके पास है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा शेयर है वो किसके पास है, वो ग्राउंड पास 0.61% के पास है। इसके अलावा फ्रेश वाटर लेक्स के पास है 009, इनलैंड सीज जो हैं उनके पास 008%, सोयल मॉइस्चर 005%, एटमोस्फेयर 001%, रिवर 0.001% का शेयर इनके पास। तो लुक एट दिस, सबसे ज्यादा ओशियन 97, उसके बाद क्या है ग्लेशियर 2.15%, 2.15%, उसके बाद ग्राउंड वाटर 0.61%, उसके बाद लेक्स वगैरह फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%, उसके बाद जो है जो इनलैंड सीज हैं 0.008%, सोयल मॉइस्चर 0.005%, एटमोस्फेयर 0.001 एंड द रिवर्स 0.0001। The amount of water in polar ice cap and glaciers is indeed more than the amount of ground water, ठीक है। तो the amount of water in rivers and lake is more than the amount of ground water is not generally correct. Groundwater which is stored beneath the earth's surface typically represent a much larger portion of the earth's freshwater compared to water in lakes and rivers. रिवर्स में देख लिया था हमने 0.00, और लेक्स में भी देख लिया था, फ्रेश वाटर लेक्स यहाँ पे हैं इन 0.009, और ये इनलैंड से भी देख लिया था। द ब्लैक कॉटन सोइल, ओके, ये तो हमने देख लिया था कि रॉक वोल्केनिक रिव से। ये क्या, इसको रेगुर सोइल भी बोलते हैं। रेगुर सोइल इज अ टाइप ऑफ सोइल दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक, इज फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इंडिया में तो है ही, पाकिस्तान में,
ब्राजील में। इन इंडिया ब्लैक कॉटन सोइल इज फाउंड इन द दक्कन प्लेटू, दिस इज अ लार्ज वोल्केनिक प्लेटू। इसमें भी ऐसा कुछ था नहीं, इसमें वही लार्ज दक्कन प्लेटू में पाई जाती है। लार्ज वोल्केनिक प्लेटू है, वोल्केनिक जो है रॉक से फॉर्म होती है ब्लैक कॉटन सोइल। इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान जैसे देशों में भी पाई जाती है। जिसके दक्कन प्लेटू में वोल्केनिक प्लेटू है, वो भी रेगुर सोइल भी बोलते हैं इसको। तो Boulgard और Bogado technology are mentioned in the context of developing genetically modified crop plants. Boulgard 1 and Boulgard 2 टेक्नोलॉजी है mentioned in the context of developing genetically modified crop plant। जीन्स को मॉडिफाई कर दो, उसके अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये दोनों क्या है, बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी है। बोलगार्ड 1 हो गया, और दोनों दोनों कौन सी टेक्नोलॉजी है, बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी है, दैट हैव जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस प्रोटीन दैट आर टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट। जिसमें एक ऐसा प्रोटीन को प्रोड्यूस किया जाएगा जो क्या है, टॉक्सिक है सर्टेन टाइप ऑफ इंसेक्ट के लिए। दिस मेक्स बोलगार्ड कोडन रिच कैन रिड्यूस द नीड फॉर फार्मर टू यूज इंसेक्टिसाइड्स। ओके, ये भी हो गया। ओके, ये भी एक और क्वेश्चन था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड artificially synthetic medium? So 1 and 2 are the correct answer. Bacteria and fungi can be cultured in artificially synthetic medium, but viruses cannot. Viruses require a living host cell to replicate, so they cannot be grown in a cultural medium on their own. ये होता क्या है कि सपोज आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम क्या होते हैं कि इसमें ना एक ऐसा एक जगह, मान लो एक ऐसी स्पेस तैयार कर दिया जहाँ पे पूरी तरह से विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा स्पेस तैयार किया जाता है। इसमें फिर बैक्टीरिया या फंगी को रखा जाता है और ये वहाँ पे डेवलप होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंगल सेल होते हैं बैक्टीरिया। बेसिकली क्या होता है कि ऐसा मीडियम तैयार करना है तो वहाँ पे जैसे रिप्रोड्यूस भी करते हैं, डेवलप भी होते हैं, तो बेसिकली आप उनकी स्टडी कर सकते हो। लेकिन वायरसेस क्या होते हैं, उनको एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लिविंग तो नहीं बोला जाता क्योंकि ये ऑलरेडी डेड होते हैं अनटिल एंड अनलेस दे गेट एन होस्ट। और जब ये होस्ट गेट करते हैं तो वहाँ की जो उसकी सेल्स होती है उन पे अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करते हैं, उसी सेल से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और फिर ये रिप्रोड्यूस वगैरह करते हैं। तो बेसिकली इनको ये नहीं है कि इनको कल्चर नहीं किया जा सकता आर्टिफिशियली सिंथेटिक मीडियम में, ऐसा तो मीडियम में। लेकिन कई बार जैसे हमें इनको स्टडी करना होता है तो हम एक ऐसी होस्ट सेल ससेप्टेबल होती है ना, जो होस्ट सेल, वो सेल्स ले लेते हैं, तब हम इसकी जैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे मतलब ये कैसे परफॉर्म हो, मतलब कैसे जो भी इनकी फंक्शनिंग वर्किंग जो भी है वायरसेस की, वो स्टडी करते हैं। किसके द्वारा, जब होस्ट सेल यूज की जाती है। इनको डायरेक्टली किसी ऐसा मीडियम को तैयार नहीं किया जा सकता इनके लिए, जैसे बैक्टीरिया या फंगी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वायरस रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल टू रिप्लिकेट, राइट, सो दे कैनॉट बी ग्रोन इन द कल्चर्ड मीडियम ऑन देयर ओन। तो बेसिकली हम एक बार ये देख रहे थे, एक तो हमने ये इनके बारे में देखा, जैसे बैक्टीरिया देखा, फंगी देखा, वायरस देखा। आर्टिफिशियल कल्चर जो ये होता है ना मीडियम होता है, उसकी बात की कि जो आर्टिफिशियल मीडियम है उसमें कल्चर किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया और फंगी को तो उसमें कल्चर किया जा सकता है, यानी कि एक हम एक ऐसा मीडियम तैयार करें जहाँ पे पूरे विटामिन विटामिन जब से सब कुछ इस तरह से सेटअप कर दे, तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी को जो डेवलपमेंट देखें हम, कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है, वो स्टडी की है। लेकिन इसमें ये वायरस के केस में ये मीडियम तैयार नहीं किया, क्योंकि वायरस को एक लिविंग सेल की जरूरत होती है, लिविंग होस्ट सेल, जहाँ पे वो खुद को रिप्लिकेट कर सके। तो अगर हमें स्टडी करना होता है, हमें इसमें सेल लेनी पड़ती है, लिविंग सेल डायरेक्टली। हम ऐसा कोई मीडियम तैयार नहीं कर सकते अगर हमें इसको। तो बेसिकली इसमें वही था कि इसमें ऐसे कल्चर नहीं किया जा सकता जो साइंटिफिक मीडियम है। पहला एक क्वेश्चन ये था। एक हमने देखा कि बोलगार जो 1 है या और बोलगार 2 है, बोलगार 1 एंड बोलगार 2 किससे रिलेटेड है, बीटी कोटन से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली क्या किया जा सकता है, क्या किया जाता है, इसमें एक ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है, वो बेसिकली क्या करेगा, कुछ ऐसे केमिकल होगा या फिर पॉइजनियस होगा या फिर उनके लिए जो कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए हो, ठीक है। तो ये क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर और जेनेटिकली जो मॉडिफाइड है उससे रिलेटेड है। कौन सा, बोलगार्ड एंड बोलगार्ड टू पिटकोटिन से रिलेटेड है, ताकि जो फार्मर्स है उनको इंसेक्ट जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो कम यूज करने पड़े, और ये टू मेक द जो क्रॉप है उसको कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, क्योंकि फिर उसमें उस क्रॉप में कुछ प्रोटीन ऐसे जनरेट होंगे जो पर्टिकुलरली जो ऐसे वो जो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स हैं उनके लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। तो बेसिकली हमने देख लिया जेनेटिकली मॉडिफाइड से रिलेटेड है, बीटी कॉटन से रिलेटेड है, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2। इसके अलावा हमें जो कल्चर जो आर्टिफिशियल या
मीडियम एज में कल्चर नहीं किया आज तक, ये क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद हम देखा, जैसे तंजानिया देखा था हमने, तंजानिया के इधर ऊपर क्या था, केनिया था, केनिया के जस्ट ऊपर क्या था, सोमालिया था, इसके यहाँ पे क्या था, इसके यहाँ पे था उगांडा, यहाँ पे क्या था, बुरुंडी था, यहाँ पे रवांडा था, इसके जस्ट नीचे मलावी था, यहाँ जामीबिया था, इधर क्या था, इसके जस्ट नीचे मोजाम्बिक था, जामीबिया के जस्ट आगे क्या है, जिम्बाब्वे है, ये हो गया। इधर क्या है, साउथ अफ्रीका है, इधर क्या है, बोत्सवाना है, इधर क्या है, नामीबिया है, इधर क्या है, एंजोला है, इसी में क्या है, लुशुतो है, और एक और था। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये कौन सा था, जैसे इधर मोजाम्बिक है, ये कौन, इधर जैसे मॉरिशस था, री मॉरिशस था, ये रियून था, ये मेडागास्कर था, इधर सेचेल था। तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हमने देखा था कि तंजानिया के साथ कौन कौन से वो बॉर्डर लगते हैं, कौन कौन से उसके। ओके, इसके अलावा हमने ये हो गया, बेटिकोटन वाला हो गया, बोलगार 1 बोलगार 2। इसके अलावा हमने एक एंडेमिक स्पीशीज देखी थी, फ्रो की। पहली बात तो वो लार्वा उसकी स्टेज नहीं होती, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ये हमें देखा था। निक टी निक वैसे ही कुछ था, उसका मुझे याद नहीं आ रहा। वो तो एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट से डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लार्वा स्टेज नहीं होती, नोक्टर्नल होते हैं, और क्या होते हैं, इंसेक्टोवोरस होते हैं। इनकी इंसेक्ट की फीडिंग इंसेक्टोवोरस पे डिपेंड करती है, ये देखा था। इसके अलावा हमने देखा था टेलीमनास। टेलीमनास 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। इसके अलावा हमने और क्या देखा, इसके अलावा और हमने देखा जैसे कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कितने ग्रुप्स को, 75 जो ये हैं ट्राइबल्स को, उनको पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में डाला हुआ है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी है, डिक्लाइनिंग स्टेगनेंट पॉपुलेशन है, लो लिटरेसी रेट है, इसके अलावा जो उनकी जो सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी है, दीज आर द ये क्राइटेरिया हो सकते हैं उनको पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में डालने की। ओके, और उसके अलावा 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कौन सी, अंडमान एंड निकोबार में क्या है, वो है। अगर आप बात करें, जैसे गुजरात हो गया, सॉरी वो अच्छा नहीं बन रहा, सपोज कीजिए ये जैसे गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ कनबात हो गया, यहाँ यहाँ से ले ले और यहाँ से ले ले, दमन दीव दादरा नागर हवेली हो गया। पंडुचेरी की बात करते हैं, इसमें जैसे ये है ना, पंडुचेरी की बात करें तो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ से जैसे है ना, तो वो पंडिचेरी में आ जाता है। इसके अलावा वो जो ये हैं, हमारी लक्षद्वीप हो गई, अंडमान निकोबार हो गई, और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हो गई, चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली हो गई, ऑल दी ज्यादा क्या है, पंडिचेरी। लगभग 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया के पास, लेकिन किसमें बताया है उन्होंने, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अंडमान निकोबार में। इसके अलावा और हमने क्या देखा, इसमें आता है राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में राइट ऑफ प्राइवेसी आता है। इसके अलावा हमने देखा सबसे ज्यादा जो वोटर है उस ओशन के पास, उसके बाद जो वोटर है लगभग 6.1, उसके हिसाब से वो क्या है, वो है ग्लेशियर्स वगैरह के पास। इसके अलावा जो वोटर देखा, ग्राउंड वाटर देखा 0.6, ये तो 0.21 कुछ था, और ये था 0.61, ये ग्राउंड वाटर के पास है। इसके अलावा जो वोटर है वो है 0.00, यहाँ पे क्या था, 0.001 था यहाँ पे, या कुछ और था वो। उसके बाद जो था बेसिकली, आई थिंक लेक्स वगैरह में था, लेक्स में था, इनलैंड सी में उसके बाद जो था, उसके बाद जो आया था, इसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट में 0.0001 रिवर के पास था। ये हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया। इसके बोलगार्ड हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और ये फ्लो वाली एंडेमिक स्पीशीज जो वेस्टर्न घाट से थी वो हो गया। होम अफेयर जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से जो बताती है, हो मिस्टर होम अफेयर। इसके अलावा और लास्ट में हमें देखा था कि कल्चरली वो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये भी हो गया। अभी मैपिंग वाला भी हो गया, वोटर वाला भी हो गया। इसके अलावा मैं अब जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप जितने क्वेश्चन पढ़े इस बात की कोई मायने नहीं है अगर आप एक्टिव रिकॉल नहीं कर पा रहे एक भी क्वेश्चन के। अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हैं तो जनरली योर देयर इज मोर न्यूरल कनेक्शन इन योर माइंड, एंड दैट it will store in longer in your mind. So I'm just trying to go there and visit all the questions which I have read.
I don't know if I have left something. First was related to television for sure. ओके आई थिंक इसका क्वेश्चन हो गया अगर हम काउंट करें बोल गार्ड वाला हो गया है वन क्वेश्चन एंड वोटर वाला टू क्वेश्चन एंड द लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन ओके मैपिंग वाला फोर्थ क्वेश्चन टेलीमेडिसिन फिफ्थ क्वेश्चन पर्टिकुलर वेरिएबल सिक्स क्वेश्चन ओके मुझे नॉक्टर्नल वाला भी हो गया सब सेवन पॉइंट एट नाइन टेन वो थ्री क्वेश्चन है आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट आई एम जस्ट ट्राइंग if there was anything else which I am not able to recall. Okay, thank you for listening. Let's link. Okay, actually, I think I'm not able to recall.